this morning we are going to celebrate Jesus as the last Adam. तो इस सुबह जो है यीशु को हम आखिरी आदम के रूप में उनका उत्सव मनाने वाले हैं। Yeah. 1 Corinthians 15 verse 45. पहला कुरिन्थियों 15 में 45। The first man, पहला व्यक्ति, his name is Adam. उसका नाम है आदम। He became a living person. वो एक जीवित व्यक्ति बना। But then लेकिन उसके बाद we have a last Adam. हमारे पास एक आखिरी आदम है। His name is Jesus. उसका नाम है यीशु। Who is he? वो कौन है? Please write. लिखिए। The last Adam आखिरी आदम, is called a life-giving spirit. उसे कहते हैं जीवन देने वाली आत्मा। The first Adam पहला आदम is a living person. वो एक जीवित व्यक्ति है। Last Adam, आखिरी आदम he is not just a spirit, वो सिर्फ आत्मा नहीं है, but he is a life-giving spirit. लेकिन वो जीवन देने वाली आत्मा है। So when God created the first Adam, तो जब परमेश्वर ने पहले आदम को रचा, he took the dust of this earth उन्होंने इस पृथ्वी की मिट्टी को लिया, and then he फिर फूका, and man became a living person. और मनुष्य जीवित बन गया। And from that time, और उस समय से the whole mankind पूरी मनुष्य जाति is under him वो उसके अधीनता में है, because he is our father. क्योंकि वो हमारे पिता है। But then लेकिन उसके बाद somebody called the last Adam came, कोई तो आया जिसको आखिरी आदम कहते हैं, who did not have a father, जिसके पिता नहीं थे, but God was his father, लेकिन परमेश्वर खुद उसके पिता थे। born of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से जन्मे थे। As the child is called the Holy One, बच्चे के रूप में उन्हें पवित्र जन कहा गया। and the Bible says और बाइबल कहती है he is a spirit who gives life. वो ऐसी आत्मा है जो जीवन देती है। Now, अभी if you are a new creation, यदि आप नई सृष्टि हो, yes or no? Yes or हाँ या no? ना, If you are born again, यदि आपका नया जन्म हुआ है, if you are saved, यदि आपका उद्धार हुआ है, now अभी you come in Jesus. आप यीशु के अंदर आते हो। You come under this person now. आप इस व्यक्ति के अधीन में आते हो अभी। So we have two Adams. तो हमारे पास दो आदम है। One, पहला the one in the Garden of Eden. जो अदन के बगीचे में है। Number two, दूसरा we have another Adam. दूसरा आदम हमारे पास है, Last Adam, आखिरी आदम, Jesus Christ, यीशु मसीहा, the life-giving spirit. जीवन देने वाली आत्मा। He also did something for us in the Garden of Gethsemane. उन्होंने भी गत्समनी के बगीचे में हमारे लिए कुछ किया है। So we are going to look at 5 things तो हम 5 चीजों को देखने वाले हैं, about the first Adam पहले आदम के बारे में and the last Adam. और आखिरी आदम के बारे में। And we are going to see how blessed you are. और हम देखने वाले आप कितने ज्यादा आशीषित हो। Yeah. Okay, let me ask you. मुझे आपसे पूछने दो, Are your sins cleansed? क्या आपके पाप शुद्ध किए गए हैं? You are rich. आप अमीर हो? Are you far away from God or close to God? क्या आप प्रभु के बहुत करीब हो या दूर हो? Come on, talk. Close to God. करीब हो। You're rich, brother. आप अमीर हो भाई। Don't keep comparing. उसके पास जगुआर है, मेरे पास मारुति. I mean, I don't know where you're living. मुझे नहीं पता आप कहाँ जी रहे हो। You are living under old first Adam. आप पहले आदम के अधीनता में जी रहे हो। When I was born, जब मेरा जन्म हुआ I was here. मैं वहां था, But now I am born of God, लेकिन अभी मैं प्रभु से जन्मा हूँ, born of heaven. स्वर्ग से जन्मा हूँ, Now I am here. अभी मैं यहाँ पर हूँ। Let's go. Number one. पहला नंबर, Yeah. The first Adam. पहला आदम, Yeah. He yielded to the temptation in the garden. वो बगीचे में जो बहका हुआ आया उसको उसने पकड़ लिया। Yeah. But praise God, लेकिन प्रभु की स्तुति हो, the last Adam, आखिरी आदम he overcame the temptation in the Garden of Gethsemane. गत्समनी के बगीचे में जो बहका हुआ आया, आखिरी आदम है, उसने उसके ऊपर जय पाई। Yeah. I am not following the first Adam. मैं पहले आदम का पीछा नहीं कर रहा हूँ, कोई आमीन नहीं बोल रहा है. I am following the last Adam. मैं आखिरी आदम का पीछा कर रहा हूँ। Now you know. आप जानते हो, Yeah. The first Adam. पहला आदम, Sin conquered him. पाप ने उस पर जय पाई। Yeah. You know it. आप जानते हो। But let's come to Jesus. लेकिन आओ यीशु के पास आते हैं। In the Garden of Eden, अदन के बगीचे में first Adam fell. पहला आदम गिर गया, But in the Garden of Gethsemane, लेकिन गत्समनी के बगीचे में the last Adam
आखिरी आदम, he won the victory. उसने विजय पाई। Matthew 26, मत्ती 26 अध्याय verse 39, वचन 39, 42, 42, 44. 44। Okay, now Jesus is in the garden. अभी यीशु बगीचे में है, Last Adam is in the garden. आखिरी आदम बगीचे में है, And the Lord says, और प्रभु कहते हैं not my will, मेरी इच्छा नहीं, your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। And he prayed for 1 hour. और उन्होंने 1 घंटा प्रार्थना किया। Next verse. अगला वचन, After 1 hour, 1 घंटे के बाद he again says, फिर से कहते हो your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। He prays for 1 hour. 1 घंटा प्रार्थना करते हो। Verse 44. वचन 44, Again he says, फिर से वो कहते हैं your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। 3 hours he prays. 3 घंटे वो प्रार्थना करते हैं। Okay, so the first Adam, तो पहला आदम जो है, he was overcome by sin पाप ने उसके ऊपर जय पाई in the Garden of Eden. अदन के बगीचे में। But लेकिन the last Adam, आखिरी आदम Jesus Christ, यीशु मसीह in the garden, बगीचे में, in the Garden of Gethsemane, गतसमनी के बगीचे में, he overcame sin. उन्होंने पाप पर जय पाई। Romans 5, verse 19. रोमियो 5 में 19। First Adam, पहला आदम, disobedience, आज्ञा उल्लंघन, everybody became sinners. सब पापी बन गए। I was also there. मैं भी था, You were also there. आप भी थे। But the last Adam, लेकिन आखिरी आदम Jesus Christ, यीशु मसीह, full obedience, पूरी आज्ञा पालन की, many have become righteous. बहुत सारे धर्मी बन गए। So please write, तो लिखिए, righteousness is a gift. धार्मिकता तोहफा है Yeah, which Jesus gave you. जो यीशु ने आपको दिया है। Yeah, it's free. मुफ्त है वो। God bless you. Keep it. प्रभु ने आपको आशीषित किया है, उसे रखो अपने पास। Yeah. Number 2. दूसरा, Yeah. First Adam, he blamed his wife. पहले आदम ने अपनी पत्नी पर इल्जाम लगाया। Yeah. It's Eve who gave me the fruit. हवा थी जिसने मुझे फल खाने दिया। लेकिन तूने सुना क्यों तेरे पत्नी का? And then it says, last Adam. आगे कहता है आखिरी आदम, Wow. The last Adam. आखिरी आदम Jesus Christ. यीशु मसीह, He did not blame his bride. उन्होंने अपनी दुल्हन पर इल्जाम नहीं लगाया। He said, bring it on me. उन्होंने कहा मुझ पर लाओ, Let me handle this. मुझे इसे लेने दो। Genesis 3:12. उत्पत्ति 3 में 12। First Adam. पहला आदम, He sinned. उसने पाप किया। God asked him, प्रभु ने उससे पूछा, why did you do this? तूने ये क्यों किया? He said, my wife. उसने कहा मेरी पत्नी। But you come to Jesus, लेकिन आप यीशु के पास आओ, the last Adam. आखिरी आदम। He said, no blaming anybody. उन्होंने कहा किसी पर इल्जाम नहीं लगाना है। Bring the sin of man. मनुष्य के पाप को लेकर आओ, Bring it to me. मेरे पास लाओ, I will do something for it. मैं करूंगा उसके लिए कुछ। 1 Peter 3:18. पहला पत्रस 3 में 18। The just took the place of the unjust. जो धर्मी था उसने अधर्मी का स्थान लिया। Yeah. Right over there, he became the substitute. लिखिए वहां पर, वो सब्स्टिट्यूट बन गए। Yeah. When a player gets injured, जब एक प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, what do? आप क्या करते हो? You substitute. आप उसके जगह किसी और को भेजते हो। First Adam ना, पहला आदम, वो खुद इंजर्ड हो गया वो खुद इंजर्ड हो गया, और उसके जितने बच्चे हैं और उसके जितने बच्चे सब इंजर्ड. सब इंजर्ड हो गए। लास्ट आदम आखिरी आदम बिल्कुल इंजर्ड नहीं. बिल्कुल इंजर्ड नहीं था। उन्होंने परमेश्वर पिता से कहा, इन लोग को सबको आप बाहर बुलाओ, मैं जाता हूं अंदर आमेन, और मैं कबड्डी खेलता हूं अंधेरे से. आमेन, आमेन। सो हु आर वी? तो हम कौन है? ब्राइड ऑफ जीसस. यीशु की दुल्हन है। वाह। How much you should be proud of this last Adam who took your place in the name of Jesus. Come on, somebody आपने give the Lord कितना a ज्यादा big hand. घमंड करना है इस आखिरी आदम पर जिसने आपकी जगह ली है। Yeah. 2 Corinthians 11 verse 2. दूसरा कुरिन्थियों 11 में 2। Yeah. Paul is saying, पौलुस कहता है, I promised Jesus something. मैंने यीशु से कुछ वादा किया है। You know what is the promise? पता है वादा क्या है? I will prepare मैं तैयार करूंगा a pure bride for you. तेरे लिए शुद्ध दुल्हन। You are that pure bride. आप वो शुद्ध दुल्हन हो।
And the pure bride should be excited. और शुद्ध दुल्हन ने उत्साहित रहना है। The moment the name comes, Jesus, जिस क्षण ये नाम आता है यीशु, the bride should say, wow, मेरे दुल्हे के बारे में बात किया जा रहा है. आमेन आमेन। Number 3. तीसरा नंबर, First Adam was naked पहला आदम नग्न था and he received clothes. और उन्हें कपड़े मिले, The last Adam, लेकिन आखिरी आदम, he had his clothes on, उनके कपड़े उनके ऊपर थे, but it was removed. लेकिन वो निकाल दिए गए। He did not lose the clothes. उन्होंने कपड़े खोए नहीं, It was removed. वो निकाले गए। The first Adam, पहला आदम he was naked. वो नग्न था। Yeah. Okay. Now, when God made Adam, जब प्रभु ने आदम को बनाया, actually, God had given him invisible clothes. प्रभु ने उसे दिखाई नहीं देने वाले कपड़े दिए थे। Yeah. Psalm 8 verse 5. भजन संहिता 8 में 5, Yeah. You have made him a bit lower आपने उसे थोड़ा नीचा बनाया है and you have given him और आपने उसे दिया है glory महिमा and honor. और आदर। So when God created the first Adam, तो जब परमेश्वर ने पहले आदम को रचा, he had invisible clothes. उसके ऊपर दिखाई नहीं देने वाले कपड़े थे। What are they? वो क्या है? Glory. महिमा। Please write over there. Glory means light. लिखिए वहां पर, महिमा का मतलब है प्रकाश, Yeah, light. प्रकाश। And he had honor. और आदर था। But when he disobeyed, लेकिन जब उसने आज्ञा उल्लंघन किया, he lost this. उसने ये खो दिया। So God came in the garden तो प्रभु बगीचे में आए, because that was his habit. क्योंकि वो उनकी आदत थी। And God said, और प्रभु ने कहा, Adam, आदम where are you? तू कहाँ है? So he said, Lord, you know, I heard you are coming तो उसने कहा, प्रभु मैंने सुना आप आ रहे हो, and I was afraid और मैं डर गया था because I was naked. क्योंकि मैं नग्न था। Okay. Genesis 3:10. उत्पत्ति 3:10, When you are naked, जब आप नग्न होते हो, it will make you fearful. वो आपको आपके अंदर डर ले आएगा। Today, it's not time to talk about fear. आज डर के बारे में बात करने का समय नहीं है, But if you are naked, लेकिन यदि आप नग्न हो spiritually, आत्मिक रूप से, there will be fear. तो डर भी जरूर होगा। Do you know the woman at the well? आपको पता है वो कुएं के पास वो स्त्री जो थी, She will come in the afternoon वो दोपहर के समय पे आती थी to draw water. पानी निकालने के लिए। Why? क्यों? Because she was ashamed. क्योंकि वो शर्मिंदा थी, So she will come every afternoon. तो वो हर दोपहर को आती थी। So the last Adam said, तो आखिरी आदम ने कहा, let me go to the daughter of the first Adam मुझे पहले आदम की बेटी के पास जाने दो। वाह! and let me do something for her today. और आज उसके लिए कुछ करने दो मुझे। The moment the daughter of first Adam, जिस क्षण पहले आदम की बेटी, she said the truth. उसने सच्चाई बोला, That's it. उतना ही The clothes of shame were removed. शर्म के कपड़े निकाल दिए गए। John 4 and verse 17, I think. John 4 verse 17. यूहन्ना 4:17, Yeah. Jesus said, you have said well. That means you have said the truth. यीशु ने कहा तुमने सच बोला है। So the moment this happened, तो जिस क्षण ये हुआ, you know what she did? पता है उसने क्या किया? She ran to her village. वो सीधा अपने गांव में भागते हुए गई। She looked in the eyes of the people who she could not look into. लोगों के आंखों में आंखें डालकर उसने देखा जिनके आंखों में आंखें डालकर वो देख नहीं पाती थी। And she said, और उसने कहा, I have found the last Adam. मुझे आखिरी आदम मिल गया है। So he lost his clothes. तो उसने अपने कपड़े खो दिए। Yeah, not lost means he lost his clothes, divine clothes. उसने अपने दैवीय कपड़े खो दिए। It brought shame to him. उसके द्वारा उसके जीवन में शर्म आई, Fear came. डर आया, So he was hiding. तो वो छुप रहा था। So God came. तो प्रभु आए। God said, come out, come out, प्रभु ने कहा बाहर आ जा, बाहर आ जा, come out. बाहर आ। And then the Bible says, फिर उसके बाद बाइबल कहती है, God took an animal, प्रभु ने एक जानवर को लिया, removed his skin, उसकी चमड़ी निकाली, blood was flowing, लहू बह रहा था, and that skin he put it around him. और वो चमड़ी उसके इर्द गिर्द लपेट दी। And as he was wearing, और जैसे वो उसे पहन रहा था, yeah, he could feel the blood. वो लहू को महसूस कर पा रहा था। And every time he feels that blood, और हर समय जब वो लहू उसे महसूस होता था, he was realizing उसे एहसास हो रहा था, for his sin, उसके पाप के लिए somebody has died. कोई तो मरा है। Always remember, हमेशा याद रखना, for sin, पाप के लिए somebody has to die. किसी ना किसी को मरना पड़ेगा।
That's why the last Adam came. इसीलिए तो आखिरी आदम आए। His clothes, he did not remove. उनके कपड़े उन्होंने खुद नहीं निकाले, He did not lose it. उन्होंने उसे खोया नहीं। But before he went on the cross, लेकिन क्रूस पर जाने से पहले the soldiers removed all his clothes. सैनिकों ने उनके सारे कपड़े उतार दिए, All the clothes were removed. सारे कपड़े उतार दिए गए। Your shame, आपकी शर्म he took it. उन्होंने ली। John 19, verse 23. यूहन्ना 19 में 23, Yeah. They removed his clothes. उन्होंने उनके कपड़े उतार दिए। Yeah. Now the clothes that the Lord gives you and me, अभी प्रभु जो कपड़े आपको और मुझे देते हैं, they have been bought with a big price. वो बहुत बड़ी कीमत देके खरीदे गए। Yeah. And it's called the blood of Jesus. और उसे कहते हैं यीशु का लहू। Yeah. Romans 5, verse 9. रोमियो 5 में 9, The blood of Jesus यीशु का लहू justifies you. वो आपको जो है धर्मी ठहराता है। Justification means you are declared to be righteous. जस्टिफिकेशन का मतलब आपको धर्मी ठहराया गया है। Yeah. घोषणा की जाती, ये है ना, ये धर्मी है, आमीन। ये धर्मी है, ये धर्मी है। अरे बाबा, लेकिन इसने कल पाप किया। हाँ, पाप किया, लेकिन जो आखिरी आदम है ना, आमीन, उसके कपड़े निकाले गए हैं, आमीन, लहू बहाया है। आमीन। इसलिए ये जितने यीशु के पीछे खड़े ना, इन्हें धर्मी ठहराया गया। आमीन, आमीन। Isaiah 61 verse 10. यशायाह 61 में 10, He has clothed me उन्होंने मुझे पहनाया है, with the garment of salvation, उद्धार के वस्त्र को पहनाया है, with the garments of righteousness. धार्मिकता के वस्त्र पहनाए हैं। How rich I am. कितना अमीर हूं मैं। I may not have a suit which is 10 lakh rupees, शायद मेरे पास 10 लाख रुपए का सूट नहीं होए, but I have a suit which can never be bought with silver and gold. लेकिन मेरे पास ऐसा सूट है जो सोना चांदी से खरीदा नहीं जा सकता। I'm a rich man. मैं अमीर व्यक्ति हूँ। Tell your neighbor, you are rich by the way. अपने पड़ोसी से कहना हकीकत में आप अमीर हो। Number 4. चौथा नंबर, First Adam पहला आदम tasted death from a tree. उसने एक पेड़ से मृत्यु को चखा, क्योंकि पेड़ के ऊपर फल लगा हुआ था। Genesis chapter 2 verse 17. उत्पत्ति 2 में 17, If you eat that fruit, यदि तुम वो फल खाओगे you'll die. तो तुम मर जाओगे। And he ate, right? और उसने उसे खाया, पता है ना। So he died spiritually first, तो पहले आत्मिक रूप से मरा, then he died physically. फिर शारीरिक रूप से मरा। The last Adam, आखिरी आदम, he tasted death. उन्होंने मृत्यु को चखा। Where? कहा? On a tree. पेड़ के ऊपर। He died वो मरा tasting the fruit. फल खाने के द्वारा। The last Adam died आखिरी आदम मरा not tasting the fruit, फल खाने के द्वारा नहीं, but on the tree he died. लेकिन पेड़ पर वो मरा। First Peter chapter 2 verse 24. पहला पत्रस 2 में 24, He took our sins उसने हमारे पापों को लिया on his body, अपने खुद के शरीर पर, on the tree. पेड़ के ऊपर। Cross is made out of the tree, right? क्रूस जो है पेड़ से बनाया गया था। Yes or no? I really pray for all of you. मैं सच में आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। You will live the days of your life that the Lord has decided for you. जो प्रभु ने आपके जीवन के लिए नियुक्त किए गए Yeah. दिन है, वो सारे दिन आप जियोगे। All the days of your life. वो सारे आपके जीवन के दिन आप जियोगे All. Sorry. And live well. और अच्छे से जियो, Yeah. Live well. अच्छे से जियो। Let there be fruit in every day of your life. परंतु आपके जीवन के हर दिन फल हो। Yeah. So, on the tree, तो पेड़ के ऊपर, on the tree he died. पेड़ के ऊपर वो मरे। Yeah, that's what the Bible says. बाइबल यही कहती है। And when he died on that tree, और जब वो उस पेड़ पर मरे, Hebrews 2:9 says, इब्रानियों 2 में 9 कहता है, and he died on that tree. उस पेड़ पर मर गए। जब वो उस पेड़ के ऊपर मरे, बाइबल कहता है उन्होंने मृत्यु खुद के लिए नहीं चखा। आमीन। He tasted death for everybody over here. उन्होंने यहाँ पर हर एक के लिए मृत्यु को चखा। Yeah. But we see Jesus लेकिन हम यीशु को देखते हैं on the cross, क्रूस के ऊपर, on the tree, पेड़ के ऊपर, and he tasted death for every man. और उन्होंने हर एक के लिए मृत्यु को चखा। Yeah.
So I'm behind this last Adam. तो मैं इस आखिरी आदम के पीछे हूँ। When I was born, जब मेरा जन्म हुआ physically, शरीर में, I was here. मैं वहां था, But then I realized one day लेकिन एक दिन मुझे एहसास हुआ that I'm a sinner. कि मैं तो पापी हूँ। And then somebody told me, फिर किसी ने मुझसे कहा there's the last Adam. एक आखिरी आदम है, His name is Jesus. उसका नाम है यीशु मसीह। He died on the tree वो पेड़ पर मरा, for all the men and women. He tasted death. सारे पुरुष और स्त्रियों के लिए उन्होंने मृत्यु का स्वाद चखा। Yeah. And then they said, you can have life. फिर आगे कहा कि तुम्हारे पास जीवन हो सकता है, In his death, उसकी मृत्यु में you can have life. तुम्हें जीवन मिल सकता है। So I said, तो मैंने कहा okay, I'm coming there. ठीक है, मैं आ रहा हूं वहां। Amen. So I'm not following first Adam. तो मैं पहले आदम का पीछा नहीं कर रहा हूं, Now I'm following the last Adam. अभी मैं आखिरी आदम का पीछा कर रहा हूं। So through the death, तो मृत्यु के द्वारा yeah, life is released for you. जीवन आपके लिए स्वतंत्र किया गया है। Right. Life. जीवन Life. I like it. मुझे Life. अच्छा लगता है। जीवन, Life means connection. जीवन मतलब जुड़ाव, Death means separation. मृत्यु का मतलब अलग होना, His separation उनका अलग होना, is life for you. का अलग होना आपके लिए एक होना, आपके लिए जीवन है यीशु के नाम में. आमेन। Number 5. पांचवा, First Adam, पहला आदम he bought, यानी खरीदा नहीं, through his disobedience. उसके आज्ञा उल्लंघन के द्वारा Yeah, he bought thorns in his life. उसने अपने जीवन में कांटे लाए, Yeah, and he gave it to all his children. और उसने सारे बच्चों को अपने दिया। Take, it's a gift for you. लो ये तुम्हारे लिए तोहफा है, Take, it's a gift for you. लो ये तुम्हारे लिए तोहफा है। So all the children who are born out of a mother's womb, तो जितने भी बच्चे जिनका जन्म माँ के गर्भ से हुआ है, the first Adam, पहला आदम he gives a gift. वो तोहफा देता है उन्हें, It's called thorns. उसे कहते हैं कांटे। Genesis 2:15. उत्पत्ति 2:15। Okay, now we are talking about your work, okay? हम अभी आपके काम के बारे में बात कर रहे हैं। Yeah. Work is very important. काम बहुत महत्वपूर्ण है। When God created man, जब प्रभु ने मनुष्य को रचा, in his mind, उनके मन में it is not that man should go and sit in Goa. ऐसा नहीं था कि मनुष्य जाकर गोवा में रहेगा। So God is not saying you should not rest. तो प्रभु ऐसा नहीं कह रहे तुमने आराम नहीं करना है, God says you should rest. प्रभु कह रहे तुमने आराम करना है। But the heart of God is you should work. लेकिन प्रभु का दिल ये है कि आपने काम करना है। After God made Adam and Eve, प्रभु ने आदम और हवा को बनाने के बाद he put them in a garden. उन्होंने उन्हें एक बगीचे में रखा, Its name is Eden. उसका नाम है अदन का बगीचा। Eden means a place where all your five senses are satisfied. अदन का मतलब वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपकी सारी 5 इंद्रियां संतुष्ट की जाती है। And what was their job? और उनका काम क्या था? Just look after the garden, सिर्फ गार्डन की रखवाली करना, protect it, उसकी सुरक्षा करना, work on it. उसमें काम करना। So every day he has to work. तो हर दिन उसने काम करना था, Every day he has to fellowship with God. हर दिन प्रभु के साथ संगति करना था उसे, Every day he has to give love to his wife. हर दिन अपनी पत्नी को प्रेम देना था, Every day he has to give love to the animals. हर दिन जानवर को प्रेम दिखाना था, And life was going on. और जीवन चल रहा था। So he had to work. तो उसको काम करना था। So when he disobeyed, तो जब उसने आज्ञा उल्लंघन किया, God said, प्रभु ने कहा, yeah, Genesis chapter 3, verse 17 to verse 19. उत्पत्ति 3 में 17 से 19, God said, because of what you did, प्रभु ने कहा तूने जो किया उस कारण the ground will be cursed. वो जो जमीन है ना श्रापित होगी। Yeah, curse means failure. श्राप का मतलब असफलता। Simple. He used to work on the ground. वो जमीन पर काम करता था। That means he used to do gardening. I don't know what all he used to do, but it was a groundwork. इसका मतलब शायद वो माली का काम करता होगा, लेकिन जमीन पर काम था। Yeah. You're working on computers. आप कंप्यूटर्स पर काम कर रहे हो, It has come from the ground. वो भी जमीन से आया है। You're working on an aircraft. आप एयरक्राफ्ट में काम कर रहे हो, That aircraft has come from the ground. वो एयरक्राफ्ट भी जमीन से आया है। Any work you do, जो भी काम आप करते हो, it all has come out of the ground. वो सब जमीन में से ही आया है। Your body आपका शरीर come from the ground. वो भी जमीन से आया है। So God said, तो प्रभु ने कहा now the ground is cursed. अभी जमीन श्रापित है, So you are going to struggle. तो तू संघर्ष करने वाला है। To overcome the struggle, संघर्ष पर जय पाने के लिए you have to work hard. तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। I have no problem with people working hard.
जो लोग मेहनत का काम करते हैं मुझे उनसे कोई समस्या नहीं। I also work very hard. मैं भी बहुत मेहनत करता हूँ, Yeah, very hard. बहुत मेहनत करता हूँ। Yeah, and I pray you work hard, by the और मैं way. प्रार्थना करता हूँ आप मेहनत करो, हाँ, Yeah, please work hard. कृपा करके मेहनत करो। But don't work so hard that your body falls into pieces. लेकिन इतना भी ज्यादा मेहनत मत करो कि आपका Verse शरीर 2 18. भागों में बढ़ जाए। Yeah, दो भागों में ने अनेक भागों में. Verse 8. Now God is saying, 18 वचन में प्रभु कह रहे हैं, the ground, जो जमीन है thorns and thistles will grow. कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। Yeah, thorns and thistles. कांटे और ऊंट कटारे, That means there will be resistance. इसका अर्थ जो है विरोध होगा। Yeah, विरोध होगा, आपके काम के लिए विरोध होगा, आपके काम के लिए विरोध होगा, ऐसा वो कह रहा है, प्रभु कह रहे हैं. Next verse, verse 19. वचन 19, You will have to work very hard. आपने बहुत मेहनत करना पड़ेगा, Sweat will come. पसीना आएगा। Okay, now praise God. Thank you. First प्रभु की Adam, स्तुति हो। thank you. पहले आदम धन्यवाद। Thank you. You gave me a lot of gifts, but they are not good. धन्यवाद, आपने बहुत सारे तोहफे मुझे दिए लेकिन वो अच्छे नहीं है। I'm changing side today. मैं आज बाजू बदल रहा हूँ, I'm going to the next side. मैं दूसरे बाजू जा रहा हूँ, I'm going here. मैं यहाँ जा रहा हूँ। Matthew 27, मत्ती 27 अध्याय verse 29. वचन 29, They twisted a crown of thorns. उन्होंने कांटों का जो मुकुट है उसको थोड़ा टेढ़ा किया, या टेढ़ा नहीं किया, मुकुट बनाया बेटा. मुकुट बनाया। जो आपके जमीन के ऊपर है, जो आप जब भी काम करते हो, जो विरोध आता है आपके काम में, उसका मुकुट बनाया गया है और प्रभु के सर के ऊपर लगाया गया है और उसे दबाया गया है. And when that crown of thorn is pushed, और जब वो मुकुट दबाया गया, blood is coming out. लहू बाहर आ रहा है। Somebody asked me, Pastor, when will I succeed? किसी ने मुझसे पूछा, पास्टर मैं सफल कब होऊंगा? When you realize जब आपको एहसास होगा the last Adam, what he did for you. आखिरी आदम ने आपके लिए क्या किया है। He took a crown of thorns, उन्होंने कांटों का मुकुट लिया, pressed on him, दबाया गया उन पर, pain, दर्द, blood. लहू। So when you touch your job, तो जब आपकी नौकरी को आप छूते हो, you should say, आपने कहना है, my Jesus, मेरा यीशु, my last Adam. मेरे आखिरी आदम। He took a crown of thorns उसने कांटों का मुकुट लिया on his head. अपने सिर पर, It was pressed. उसे दबाया गया, He went through pain. वो दर्द से गए, He was bleeding. लहू बह रहा था। Today, आज I want the fruit of that. मुझे उसका फल चाहिए। अच्छा समझो इधर आ. He's a champion boxer मान लो ये चैंपियन बॉक्सर है and I am his wife. और पास्टर कहते हैं वो उनकी पत्नी है, Yeah. छोटे इधर आ. He's also a boxer. ये भी बॉक्सर है। Final boxing round. फाइनल बॉक्सिंग राउंड हो रहा, World Cup. वर्ल्ड कप, World Championship. वर्ल्ड चैंपियनशिप, And the prize amount is 100 crores. और उसकी रकम है इनाम की 100 करोड़। एक फाइट मार, मर गया, जान मार मार, हाँ जा जा, ओके, प्राइज दे दे उसको 100 करोड़. He comes home. वो घर आता है, Darling, congratulations. डार्लिंग बधाई हो। Now what about the check? अभी चेक के बारे में क्या? There is no wife who doesn't understand how to take from her husband and use. ऐसी कोई पत्नी नहीं जिसको समझ में नहीं आता अपने पति से कैसे लेके उसका इस्तेमाल करना है। But we have bride of Jesus who doesn't understand how to take what her husband has won for her and use it in her life. लेकिन हमारे पास यीशु की ऐसी दुल्हन है जो नहीं जानती उसके पति ने क्या किया है, उसे कैसे लेना है और अपने जीवन में कैसा उसका इस्तेमाल करना है। Yeah. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, you should not struggle. आपने संघर्ष नहीं करना चाहिए। I pray मैं प्रार्थना you करता हूँ, should do well आपने अच्छा करना चाहिए, because your husband, क्योंकि आपके पति, your maker, आपके सृष्टिकर्ता, he took the crown of thorns उसने कांटों का मुकुट लिया and he's saying, take the check, now live. और वो कह रहे चेक ले और अभी तू जी Live. जी, Live where you bring honor to me. ऐसा जी जहां पर तू मेरे लिए आदर ले आए, Live so that you are a blessing to others. ऐसा जी ताकि तू दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, Live so that you are satisfied. ऐसा जी ताकि तू संतुष्ट हो। If you use that check, यदि आप उस चेक का इस्तेमाल करोगे, you will never be a borrower. आप कभी उधार लेने वाले नहीं बनोगे।
You will never be a borrower. आप कभी उधार लेने वाले नहीं You will रहोगे, always be a lender. आप हमेशा देने वाले बनोगे। Okay. Now you may say, Pastor, ऐसा है क्या? I cannot take a loan for my house. आप कहोगे पास्टर ऐसा है क्या, मेरे घर के लिए लोन नहीं ले सकता मैं? ले सकते हो, लेकिन मैं ये प्रार्थना करता हूं प्रकाशन आए। आमीन। Deuteronomy 28:11. व्यवस्था विवरण 28:11। Yeah. The Lord will give you many children, प्रभु तुम्हें बहुत बच्चे देंगे, many cattle, बहुत सारे जानवर, abundant crops. बहुतायत की फसल। Tell your neighbor, use the check, use the check. अपने पड़ोसी से कहो चेक का इस्तेमाल करो। करो, ऐसा क्या कर रहे हो? Next verse, last verse. अगला वचन, आखिरी वचन। Wow. God will send rain from the storehouse in heaven स्वर्ग के भंडार गृह में से प्रभु बारिश भेजेंगे and bless your work. और तुम्हारे कामों को आशीष देंगे। Yeah. आमीन। Right over there. वहां पर लिखिए, My work is going to be blessed मेरा काम आशीषित होने वाला है। आमीन। because Jesus took the crown of thorns on his head. क्योंकि यीशु ने कांटों का मुकुट अपने सिर पर लिया। Yeah. Because God will bless you. क्योंकि प्रभु आपको आशीष देंगे, इसीलिए Small word over here. यहाँ पर छोटा शब्द है, Because God will bless your work, प्रभु आपके कामों को आशीषित करेंगे, इसीलिए you will give to others. आप दूसरों को दोगे। बाजू वाले को बोलना, छुट्टा बिट्टा चाहिए तो मुझसे मांग लेना। तो यार मैंने बोल रहा है, देखा, don't get offended, don't get offended. बुरा मत मानना, बुरा मत मानना. It's the fact. ये हकीकत है। आमीन। You are called to lend. आपको बुलाया गया है देने के लिए। So Jesus died on the tree, right? तो यीशु पेड़ पर मरे, सही है ना? They brought him down. नीचे लाया उसे, They put him in a garden. उसे बगीचे में रखा, They buried him in a garden. बगीचे में दफनाया। So on the third day, तीसरे दिन the ladies went to see. स्त्रियां उसे देखने गई। So when they went to see, तो जब वो देखने गई, they saw the stone has been rolled away. उन्होंने देखा पत्थर हटाया गया है And two angels are sitting over there. और दो स्वर्गदूत वहां बैठे हैं And they are asking, और वो पूछ रहे, for what you came here? तुम यहाँ क्यों आए हो? So the angel said, he's not here. तो स्वर्गदूतों ने कहा वो तो यहाँ नहीं है। So one lady called Mary Magdalene, तो एक स्त्री मरियम मगदलीनी नाम she की, turned around and she was looking here and there because I don't know whether she believed them or not. I don't know what. वो जो है मुड़ कर यहाँ वहाँ देखने लगी। मुझे नहीं पता उन पर विश्वास किया कि नहीं उसने। She's looking here and there. वो यहाँ वहाँ देख रही है। Suddenly she sees somebody. अचानक से वो किसी को देखती है। Get ready now. तैयार हो जाओ अभी। She sees somebody over there. वो वहाँ किसी को देखती है। John 20 verse 15. यूहन्ना 20:15। So that person is asking, तो वो व्यक्ति पूछ रहा है, woman, स्त्री why are you crying? तू क्यों रो रही है? Jesus asked her, यीशु ने पूछा उससे, who is it that you're looking for? तुम किसे ढूंढ रही हो? You're ready? तैयार हो अभी? She thought he's a gardener. उसने सोचा कि वो एक माली है। इसका मतलब वो लोग गार्डन के अंदर खड़े हैं। यस। कोई आमीन नहीं बोल रहा है। जो चीज आदन के गार्डन में खत्म हुआ, वही चीज गत्समनी में खत्म हुआ, वही चीज प्रभु फिर एक बार गार्डन में शुरू कर रहा है यीशु के नाम। आमेन, आमेन। And you know who that person was? और आपको पता वो व्यक्ति कौन था? Jesus. यीशु। आमेन। He had risen up from the dead. वो मुर्दों में से जी उठे। May the Lord bless you. परंतु प्रभु आपको आशीष दे। May you follow the last Adam till your last breath. आपकी आखिरी सांस तक होने दो, आप आखिरी आदम का पीछा करते रहो। And may your life become a blessing. और होने दो आपका जीवन आशीष का कारण बने।